Hello friends, welcome back. I am Professor Akhilesh Shah and it's my sixth lecture. Today I am going to complete the ongoing chapter Income from Other Source, if not the entire chapter, at least the theory part of it. But before going any further, I would like to draw your attention for a while and make you understand the very purpose of creating and promoting this channel. Friends, as you know, many students couldn't pursue their education due to several reasons and obstacles that have emerged consequential to corona outbreak ever since March last year. 2020. And therefore, we thought of providing free education to those deprived and yet willing to continue their education. Though it's our philanthropic contribution, we would want nothing more than the words of appreciation and encouragement from you. Trust me, no reward of any sort will be worth your invaluable support. Therefore, if you find our videos worth watching, subscribe to our channel, hit the like button, press the bell icon to never miss an update. And moreover, we'll be glad if you can share the link of our videos with those in need. Now, without any further delay, let's get started. I was discussing with you the mnemonics which I gave you in the last lecture, DC Kumari GF. Out of which I have covered up to point M in the last lecture. So today, first point is A. A is for agricultural income. In case of agricultural income, we must find out whether the agricultural income is from land located in India or located outside India. फ्रेंड्स, अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है और आपको एग्रीकल्चरल इनकम हुआ तो ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(1). And if the land is located outside India, then the agricultural income is taxable. सर, अगर क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं whether the agricultural land is in India or outside India, तो हमें क्या assumption करना चाहिए? In that case, we will always assume that land to be an Indian land. एग्रीकल्चरल लैंड को इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड समझना और इनकम को एग्जेम करना अंडर सेक्शन 10(1). हमें assumption करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें एग्रीकल्चरल इनकम को इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम समझ के एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जाम करना चाहिए अंडर सेक्शन 10(1). द नेक्स्ट ए इज, ए में 2 पॉइंट था, पहला ए, सेकेंड ए इज फॉर अवार्ड। अगर आपको अवार्ड मिला तो देखना चाहिए ये अवार्ड किसने दिया। If the award is received from the government, in public interest, then award received by the recipient is exempt under section 1017A. It is exempt under section 1017A. And if the award is received from a private institution, other than the government, then the award will be taxable. यहाँ पे भी in case of award, always assume that the award is received from a private institution if there is no mention. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि अवार्ड हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मिला और ऐसे अवार्ड को आपको टैक्सेबल करना। ए के पॉइंट हो गए। आफ्टर ए, नेक्स्ट पॉइंट इज आर। R is for rental income.
आर में भी 3 पॉइंट मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट आर है रेंटल इनकम। रेंट में टोटल 3 पॉइंट है। पहला रेंट फ्रॉम असेट अदर देन बिल्डिंग। अदर देन मतलब एक्सेप्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर आपने किसी दूसरे प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो ऐसे रेंट को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब यहां पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मतलब ऐसे इनकम को भी टैक्सेबल इनकम समझना है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था टैक्सेबल इनकम का मतलब डिडक्ट एक्सपेंसेस नेट अमाउंट इज टैक्सेबल। मतलब फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस इनकम, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आपको लेस करना चाहिए और नेट अमाउंट पे टैक्स पे करना चाहिए। सिंपल। द नेक्स्ट पॉइंट इन आर इज composite rent. And what was composite rent? मैंने आपको बताया था composite rent is nothing but rent from house property or building बिल्डिंग लिखो, हाउस प्रॉपर्टी लिखो, बात एक ही है। रेंट फ्रॉम बिल्डिंग along with other assets। हमने घर के साथ फर्नीचर रेंट पे दिया और हम कंबाइंड रेंट चार्ज कर रहे हैं। दोनों असेट का रेंट हम लोग कंबाइंड चार्ज कर रहे हैं, ऐसे रेंट को हम लोग कंपोजिट रेंट बोलते हैं। एंड सिंस वी कैन नॉट डिवाइड द अमाउंट ऑफ कंपोजिट रेंट बिटवीन द हाउस प्रॉपर्टी एंड द अदर असेट सेपरेटली, द एंटायर अमाउंट ऑफ रेंट इज कॉल्ड एज कंपोजिट। और ऐसे कंपोजिट रेंट को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ठीक है। भाड़े का घर हमने भाड़े पे दिया, तो मैंने आपको बताया था टेनेंट को रेंट मिला, टेनेंट को, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो ए ने प्रॉपर्टी बी को लेट आउट किया और बी ने ये प्रॉपर्टी फर्दर लेट आउट किया सी को। तो हम लोग पहले बोलते हैं ए बीइंग द ओनर has let out his property to B and therefore B is tenant, and tenant has further let out, that is he has actually subletted this property to C, and therefore C is nothing but subtenant. In this case C is paying rent to B, B on the other hand paying rent to A, so there is income to A. Therefore for A such income will be taxable as income from house property since he is the owner of the property and there is a house property as well. But for B this rental income will be taxable as income from other source since B is not the owner, he is the tenant. C को कुछ income हुआ क्या? Answer is no, C कोई भी टैक्स नहीं देगा। C is simply paying rent, वो रेंट पे कर रहा है, उसके लिए एक्सपेंस है। तो आपको याद रखना है अगर टेनेंट को इनकम हुआ बाय सबलेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी, तो ऐसे इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखने का, और वो टैक्सेबल है। सिंपल, ये सारे इनकम टैक्सेबल है। रेंटल इनकम सबके सब टैक्सेबल है, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि रेंटल इनकम टैक्सेबल, टैक्सेबल का मतलब अगर कुछ एक्सपेंस लिए है तो एक्सपेंस को लेस करो और नेट अमाउंट पे टैक्स पे करो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड आर में टोटल 3 पॉइंट। रेंटल इनकम के अंदर भी 3 मैंने बताया आपको, मेन आर, सेकेंड आर, रॉयल्टी इनकम। समझो मैं ऑथर हूं, मैं बुक लिखता हूं और मुझे पब्लिशर क्या देता है? रॉयल्टी, क्योंकि मैंने उसको कॉपीराइट दिया। कंटेंट्स जो मैंने लिखे थे बुक में उसका कॉपीराइट मेरे नाम पे था, तो कॉपीराइट पब्लिशर को दिया, पब्लिशर ने मुझे रॉयल्टी दिया, तो मेरे लिए रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अभी आपको पता है बहुत सारे फिल्म स्टार्स वगैरह ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं,
और कंपनी उनको रॉयल्टी देती है, तो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आर में थर्ड आर, इट इज रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर। ठीक है, नॉन एम्प्लॉयर मतलब मेरा बॉस नहीं है और वहां से मुझे रेम्यूनरेशन मिला। इसके भी एग्जांपल में लिख देता हूं, ये सारे इनकम टैक्सेबल है। आर में फर्स्ट आर बी टैक्सेबल, सेकेंड आर बी, थर्ड आर बी टैक्सेबल। ठीक है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, मैंने आपको ऑलरेडी इसका एक एग्जांपल बताया था, आई एम जस्ट राइटिंग दैट एग्जांपल अगेन हियर। पेपर सेटिंग फीस, paper setting fees received by college lecturer from university। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, समझो कोई डॉक्टर है, उसने किसी एलिमेंट पे, डिसीज पे रिसर्च किया और उसका उसने पेपर प्रेजेंट किया, सेमिनार वगैरह लिया और उसके लिए उसको ऑनरेरियम मिला। ऑनरेरियम रिसीव्ड फॉर प्रेजेंटिंग पेपर्स इन सेमिनार। तो ऐसे इनकम को आप रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर बोलोगे और अदर सोर्स में टैक्स करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर आर इज आई, आई इज फॉर इंटरेस्ट इनकम। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इनकम के बहुत सारे सोर्सेस है। इंटरेस्ट हमें डिवेंचर पे मिलता है, डिपॉजिट्स वगैरह पे मिलता है। अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट में बहुत सारे सोर्सेस है, हमें सर्टन सोर्सेस याद रखना है। इंटरेस्ट में कुछ सोर्सेस के इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी के सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल। सर क्या एग्जेम्प्ट है? यहाँ पे मैं दो पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट वो इंटरेस्ट लिखता हूं जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1015, और बाकी के टैक्सेबल इंटरेस्ट अदर, अदर को आप टैक्सेबल इंटरेस्ट बोलोगे। एग्जेम्प्ट में क्या आता है? सर्टन एग्जांपल्स, जैसे अगर आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड खरीदा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, वहां से इंटरेस्ट मिला, तो ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1015। नेक्स्ट एग्जांपल इज नोटिफाइड टैक्स फ्री बॉन्ड, नोटिफाइड टैक्स फ्री बॉन्ड। फ्रेंड्स, इसमें लिस्ट है और इनफैक्ट वो लिस्ट हमें याद ही रखना है, हमारे टीवाईबीकॉम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिंपल नोटिफाइड टैक्स फ्री बॉन्ड ऐसा याद रखो, है ना। नोटिफाइड मतलब सिलेक्टेड स्पेसिफाइड टैक्स फ्री बॉन्ड जिसमें इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट मिला और इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया, वहां से इंटरेस्ट मिला, ये भी एग्जेम्प्ट होता है और इसमें एक लिमिट दिया है, ये एग्जेम्प्ट होगा मैक्सिमम ₹3,500 पर एनम पर अकाउंट होल्डर। ठीक है, मतलब समझो अगर ज्वाइंट अकाउंट है, दो लोगों ने ज्वाइंटली अकाउंट ओपन किया तो फिर 7,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा साल का। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1015। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ।
मैंने मेरे नाम पे पीपीएफ अकाउंट ओपन किया, मैं डिपॉजिट्स कर रहा हूँ, और एक सर्टेन एज के बाद वहां से मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अप्रूव होता है, इंटरेस्ट भी मिलता है हमें। वो इंटरेस्ट पीपीएफ का एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन इसका सेक्शन अलग है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1011। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। बाकी के सारे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 1015 एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1011। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड। कोंकण रेलवे, इंटरेस्ट ऑन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड। नेक्स्ट इज रिलीफ बॉन्ड। रिलीफ बॉन्ड तीन टाइप के हो सकते हैं, एक नेशनल रिलीफ बॉन्ड, the other one is state relief bond, the last one आरबीआई रिलीफ बॉन्ड। आपको इंटरेस्ट मिला तो ऐसे इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड, स्टेट रिलीफ बॉन्ड एंड आरबीआई रिलीफ बॉन्ड सब एग्जेम्प्ट होंगे। लास्ट पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसे सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 1015 विद एन एक्सेप्शन, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1011। अदरवाइज इनको छोड़ के बाकी के सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे। इनफैक्ट 1015 में बहुत सारे और भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन वो सब आउटडेटेड है, वो सब अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी नहीं है, इसलिए मैं लिखा भी नहीं। जैसे ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट करके है, जैसे पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट वगैरह है ना। फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड वगैरह है, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट है। तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इनफैक्ट एग्जाम में भी नहीं आता, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा बाकी का जो भी इंटरेस्ट होगा सब टैक्सेबल है ना। अभी टैक्सेबल में क्या, तो बोलेगा सर एग्जेम्प्ट को छोड़ के बाकी का सब टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे समझो आपको इंटरेस्ट मिला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो टैक्सेबल होगा। आपको इंटरेस्ट मिला नेशनल सेविंग स्कीम पे, नेशनल सेविंग स्कीम पे, तो वो टैक्सेबल होगा। आपको इंटरेस्ट मिला सेविंग बैंक अकाउंट पे, आपने समझो एसबीआई में या आईसीआईसीआई बैंक वगैरह किसी भी बैंक में आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन किया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, हम लोग एफडीआर भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, तो उसके इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे, है ना। अभी जैसे इंटरेस्ट ऑन किसान विकास पत्र, इंटरेस्ट ऑन इंदिरा विकास पत्र, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू समवन, ये सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे। मतलब टैक्सेबल का लिस्ट लंबा चौड़ा है, ये लिस्ट याद करने के जगह पे आप याद रखो कि 1015 में क्या क्या एग्जेम्प्ट होते हैं। 1015 को छोड़ के बाकी का सारा इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल करना है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर आई इज जी, and G stands for gift income received by all assessees। किसी को भी गिफ्ट मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, और इसको सेक्शन 56 टू क्लॉज 10 में कवर किया है। गिफ्ट इनकम का मतलब क्या है, एक्चुअली ये एमसीक्यू में आया है, याद रखना। गिफ्ट इनकम का मतलब एन इनकम रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन, रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन, एन इनकम रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन इज कॉल्ड एज गिफ्ट इनकम। ठीक है, गिफ्ट में हमें टोटल 3 पॉइंट याद रखना है। गिफ्ट
इनकम तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट में कैश भी आएगा, चेक से गिफ्ट मिला वो भी कवर होगा, डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट ट्रांसफर, एनईएफटी वगैरह, आरटीजीएस, ये सब इसमें कवर होता है। ठीक है। उसके अलावा गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारे प्रॉपर्टी आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ सिलेक्टेड असेट पे ही टैक्स लेता है, वो मैं आपको बताता हूं बाद में। और थर्ड है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आपको याद रखना है, जिसपे गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है। तो टोटल तीन टाइप के गिफ्ट इनकम हो गया। नंबर वन कैश गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ मूवेबल एंड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, कैश गिफ्ट की बात करता हूं मैं। कैश गिफ्ट में कुछ गिफ्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेता है, irrespective of the amount of the gift received. Total amount of the gift received would be exempt. आपको गिफ्ट कितना भी मिला सारे अमाउंट पे एग्जेम्पशन गवर्नमेंट देता है, एक रुपए का भी टैक्स नहीं देना। तो गिफ्ट अगर हमें मिला, समझो शादी के टाइम पे मैरिज, रिलेटिव से गिफ्ट मिला, इनहेरिटेंस और विल के वजह से गिफ्ट मिला, डेथ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द डोनर, गिफ्ट देने वाला अपने मरने को सोच के गिफ्ट दिया हमें, तो जिसको गिफ्ट मिला उसके लिए नॉट टैक्सेबल। मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने गिफ्ट दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने गिफ्ट दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट ने गिफ्ट दिया, लोकल अथॉरिटी ने गिफ्ट दिया, तो आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है। गिफ्ट अगर आपको अदर सोर्सेज से मिला तो भी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट बोलता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द गिफ्ट, aggregate amount of the gift must be up to ₹50,000। प्रीवियस ईयर में 2021 में 1 अप्रैल टू 31 मार्च टोटल गिफ्ट आपको क्या मिला वो आपको एग्रीगेट करना है। इफ द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज अप टू ₹50,000 then there is no tax, but if the aggregate amount exceeds ₹50,000 तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। दिस वन इज नॉट टैक्सेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 बोलता है उसको इनकम ही नहीं समझने का। सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 के हिसाब से अगर वो इनकम ही नहीं है तो टैक्स देने की बात ही नहीं होती है। ठीक है। यहां पे भी अगर एग्रीगेट अमाउंट 50 तक है तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन इफ द एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स 50,000 देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब समझो आपको 50,000 एक रुपए का गिफ्ट मिला तो 50,000 एक टोटल अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अगर आपको 60,000 का गिफ्ट मिला तो टोटल 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अभी मिस्टर आईडी मेक लो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला एम, मैरिज, शादी के टाइम पे गिफ्ट लिया, गवर्नमेंट बोलता है शादी के टाइम पे गिफ्ट मिला, किसने दिया हम लोग देखेंगे नहीं, कितना दिया हम लोग देखेंगे नहीं। एंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड by an assessee on the occasion of marriage will not be taxable, will not be counted as income. Next point है R. R is for relative. इन लोगों ने सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 में रिलेटिव को भी डिफाइन किया है। रिलेटिव में क्या क्या आएगा मैं बताता हूं बाद में आपको, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार सुनना चाहिए। तो रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो टैक्स मत देना। नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत में मिला, बाप का प्रॉपर्टी बेटे को मिला तो बेटे को टैक्स नहीं देना है। सेकेंड एग्जांपल इज विल, वसीयत बनाया है ना, वसीयत बना के अगर प्रॉपर्टी अगर कैश किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो जिसको मिलेगा उसके लिए नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज डी,
and D is for death contemplation. Death contemplation of the donor. डोनर मतलब जो गिफ्ट देना चाह रहा है वो अपने मरने को सोच के किसी पर्सन को गिफ्ट दिया, समझो मुझे गिफ्ट मिला तो मैं बोलूंगा आई हैव रिसीव द गिफ्ट इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर। तो जिसने गिफ्ट दिया उसने अपना खुद का डेथ कॉन्टेम्पलेट किया, उसको ऐसा लगा कि वो मरने वाला है और मरने से पहले उसने अपने प्रॉपर्टी, उसने अपने कैश मुझे गिफ्ट में दे दिए, तो मेरे लिए यानी रेसिपिएंट के लिए नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, वहां से गिफ्ट मिला तो आप टैक्स मत दो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज वगैरह, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस से गिफ्ट मिला तो नॉट टैक्सेबल। चैरिटेबल ट्रस्ट से गिफ्ट मिला तो नॉट टैक्सेबल। एंड लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी ने गिफ्ट दिया तो भी नॉट टैक्सेबल। मैंने आपको बताया था लोकल अथॉरिटी को हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं गांव साइड में, और इसको कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोलते हैं। यहां से अगर गिफ्ट मिला तो टैक्स मत देना, ठीक है। मिस्टर आईडी मेक्लो में अमाउंट मत चेक करना कितना अमाउंट मिला, कितना भी अमाउंट मिलेगा सारा अमाउंट एग्जेंट होगा, नॉट टैक्सेबल होगा। अगर समझो मिस्टर आईडी मेक्लो में कवर नहीं है तो ऐसे गिफ्ट भी एग्जेंट होंगे, बट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी अप टू ₹50,000 फॉर द एंटायर ईयर। एंड इफ द अमाउंट एक्सीड्स बाय अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी अगर बढ़ा तो टोटल अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब समझो अगर आपको 51,000 का गिफ्ट मिला तो टैक्स टोटल 51,000 पे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें सारा पॉइंट मैंने आपको समझाया, रिलेटिव का पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। रिलेटिव्स में क्या आता है, प्लीज पे अटेंशन। समझो ये एसएससी है, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए रिलेटिव उसका या उसकी स्पाउस होगी। स्पाउस का मतलब लाइफ पार्टनर। फॉर एग्जांपल, इफ एसएससी इज हस्बैंड देन द स्पाउस विल बी वाइफ, एंड इफ एसएससी इज वाइफ स्पाउस विल बी हस्बैंड। तो एसएससी के लिए स्पाउस रिलेटिव है, एसएससी के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, एसएससी के स्पाउस के भी ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, एसएससी का फादर एंड मदर रिलेटिव है, एसएससी के स्पाउस के भी फादर एंड मदर रिलेटिव है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, एसएससी का सन एंड डॉटर रिलेटिव, स्पाउस के भी सन एंड डॉटर रिलेटिव, है ना। मतलब इन केस ऑफ स्टेप चिल्ड्रंस, अडॉप्टेड चिल्ड्रंस, सब रिलेटिव। फादर के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव, मदर के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव। लेकिन फादर इन लॉ मदर इन लॉ के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट बोलता है अब ऑल लीनियल असेंडेंट रिलेटिव है, लीनियल असेंडेंट, और लीनियल डिसेंडेंट रिलेटिव है। सर ये लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फादर का फादर, ग्रैंड फादर लीनियल असेंडेंट होंगे और वो रिलेटिव है, लेकिन ग्रैंडफादर के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव नहीं है क्योंकि वो लाइन के बाहर जा रहे हैं, एक लाइन में जाना चाहिए। असेंडेंट का मतलब फादर का फादर, मतलब अपने ग्रैंडफादर होने चाहिए, ग्रैंडफादर के ब्रदर सिस्टर एक लाइन में नहीं आ रहे, तो लाइन के बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो काउंट नहीं होंगे रिलेटिव में। सेम इज द केस विद सन, सन का सन रिलेटिव होगा, लेकिन डॉटर के सन एंड डॉटर रिलेटिव नहीं होंगे क्योंकि फैमिली चेंज हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे जितने लोग मैंने लिखे सब रिलेटिव है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे भी स्पाउस के भी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट रिलेटिव होंगे, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट।
है ना, LA लीनियल असेंडेंट एंड LD लीनियल डिसेंडेंट, ये रिलेटिव है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट बोलता है जितने भी यहाँ पे रिलेटिव है सबके स्पाउसेस भी रिलेटिव होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा भाई रिलेटिव तो भाभी रिलेटिव, बहन रिलेटिव तो जीजा जी भी रिलेटिव, ऐसे तो सबके स्पाउसेस रिलेटिव होंगे। और एक और पॉइंट याद रखना यहाँ पे, खुद के और स्पाउस के सन एंड डॉटर को छोड़ के बाकी के किसी के भी सन एंड डॉटर रिलेटिव नहीं है। मतलब उसमें नेफ्यू वगैरह, नीस वगैरह, कजिन्स वगैरह को आप रिलेटिव काउंट नहीं करोगे, है ना। कजिन्स वगैरह, नेफ्यू, नीस वगैरह दे आर नॉट रिलेटिव अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 टू क्लॉज 10। नोट नंबर 1, spouses of all above relatives are also relatives. The next point is cousins, niece, nephew, etc. are not relatives. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, गिफ्ट में सेकेंड पॉइंट था गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत कुछ आता है, जैसे रिस्ट वॉच है, मोबाइल है, लैपटॉप है। सारे एसेट पे गवर्नमेंट लेकिन टैक्स नहीं लेता है। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आपको टैक्स सिर्फ देना है ऑन ड्राइंग्स, टैक्स ड्राइंग्स पे, पेंटिंग्स पे, ज्वेलरी पे, जिसमें बुलियन भी आता है, इंक्लूडिंग बुलियन, उस पे ही खाली टैक्स देना है। स्कल्पचर, है ना, एफिजी, मूर्ति वगैरह, शेयर्स इन सिक्योरिटीज, आर्ट वर्क, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, रेयर कलेक्शन, एंटिक पीस, पुराने जमाने का रेयर कलेक्शन होगा, उस पे टैक्स लगेगा। तो सिर्फ ऐसे एसेट पे ही टैक्स लगता है, अदर एसेट पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच हो गया, अगर आपको गिफ्ट में किसी ने रिस्ट वॉच दिया तो टैक्स मत देना। मोबाइल गिफ्ट में मिला, नो टैक्स। लैपटॉप गिफ्ट में मिला, नो टैक्स, है ना। कार गिफ्ट में मिला, नो टैक्स, एक्सेट्रा। एयरक्राफ्ट मिला, नो टैक्स। गवर्नमेंट बोलता है हम लोग इस असेट पे टैक्स नहीं लेंगे, नॉट टैक्सेबल। वैसे भी ये सारे एसेट डिप्रिसिएबल एसेट है, इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने को कुछ बेनिफिट होगा नहीं, और ये वाले एसेट में अपने को बेनिफिट हो जाएगा। कैसे बेनिफिट होगा? विद द एप्रिसिएशन इन द प्राइस, है ना। अगर आप इस एसेट को होल्ड करके रखते हो, 2-4 साल के बाद बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, है ना। इसमें खाली एक एक्सेप्शन है, शेयर्स इन सिक्योरिटीज, शेयर्स का प्राइस वेरिएबल होता है, अदरवाइज बाकी के एसेट में तो बेनिफिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे एसेट पे हमें टैक्स देना है, और इसमें भी वो सेम पॉइंट एप्लीकेबल है जो मैंने बताया था, सेम एज कैश गिफ्ट लिखता हूं, सेम एज कैश गिफ्ट, है ना। मतलब अगर ये हमें इनकम हुआ ड्यू टू मिस्टर आईडी मेकलो तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे, अदरवाइज हम लोग इसका फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 तक है तो मत देना टैक्स, अगर 50,000 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। सेम एज कैश गिफ्ट का मतलब अगर आपको ये गिफ्ट मिला और कहां से मिला, मिस्टर आईडी मेकलो के वजह से, तो टैक्स मत दो। अदरवाइज है तो आपको एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50 तक है तो टैक्स मत देना, 50 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग
उसमें हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पे भी सेम पॉइंट एप्लीकेबल है, कैश गिफ्ट जैसा ही। अगर ये मिस्टर आईडी मिकलो के वजह से मिला तो नॉट टैक्सेबल। अदरवाइज है, समझो मेरे फ्रेंड्स ने दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखूंगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच प्रॉपर्टी। यहां पे एग्रीगेट नहीं करना है, एक एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अलग अलग देखना है। अगर वो अप टू 50,000 है तो नॉट टैक्सेबल, है ना। समझो आपको लैंड भी मिला, बिल्डिंग भी मिला, तो दोनों प्रॉपर्टी का वैल्यू आप सेपरेट देखोगे। जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50,000 तक होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस पर टैक्स मत देना। जिसका 50,000 के ऊपर होगा, फुल्ली टैक्सेबल। मोर देन 50,000 होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। गिफ्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट एफ था। एफ में दो पॉइंट है। फर्स्ट एफ, बोर्ड मीटिंग फीस। बोर्ड मीटिंग फीस received by directors for attending board meeting। ये टैक्सेबल होता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट एफ है। एफ का फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन किसको मिलता है, मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय के मरने के बाद एम्प्लॉय का पेंशन फैमिली मेंबर को मिलता है, तो फैमिली मेंबर के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। डिसीज्ड एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय इज नो मोर and his pension is actually paid to his family members। फैमिली मेंबर के लिए फैमिली पेंशन टैक्सेबल होता है। इट इज टैक्सेबल सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन। गवर्नमेंट बोलता है हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स डिडक्शन। अभी अगर गवर्नमेंट ने फिक्स डिडक्शन दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, तो आप एक्सपेंसेस को लिखोगे नहीं। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आया, इसका मतलब इग्नोर एक्सपेंसेस। Actual expense to realize family pension should not be accounted for, should not be allowed as deduction. Instead, we should claim standard deduction. And what is standard deduction? How much is the standard deduction allowed? Standard deduction is 1/3 of family pension received। हमें देखना चाहिए the amount of family pension as received by the family member, उसका 1/3, and the other amount is maximum 15,000। एक लिमिट दिया है maximum 15,000 का, whichever is less। दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल समझो फैमिली पेंशन मिला, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर is rupees 2,500 per month। एक्सपेंसेस इनकर्ड, फैमिली पेंशन ऑन करने के लिए एक्सपेंस पे क्या, टू रियलाइज फैमिली पेंशन रुपीज, समझो 5,000 का एक्सपेंस हुआ, तो आप 5,000 को इग्नोर करोगे
और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखना है। आंसर प्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले फैमिली पेंशन लिखना, कितना मिला, फैमिली पेंशन रिसीव्ड 2500 पर मंथ है, हम लोग एक साल का फॉर्मेट बना रहे हैं, therefore for the entire year the amount would be 30,000, 2500 into 12 less deduction, standard deduction, which is one third of family pension. One third of family pension received is 30,000, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से वन थर्ड आ गया 10,000 and the other amount maximum limit of 15,000 whichever is less. तो दोनों में से कम कौन सा? 10,000, 10,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और टैक्स किस पे आएगा? टैक्स आएगा 20,000 पे। तो इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। मतलब हमें वन थर्ड ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड और मैक्सिमम 15,000 विच एवर इज लेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। हमें वन थर्ड और 15,000 ये दोनों अमाउंट याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, अगर फैमिली पेंशन 15,000 मिला तो क्या? तो हमें तो वन थर्ड और 15,000 याद रखना है, तो 15,000 का वन थर्ड कम्स टू 5,000 एंड मैक्सिमम 15 विच एवर इज लेस इज 5। तो डिडक्शन 5,000 का आ गया, दोनों में से कम 5,000 है, तो टैक्स आएगा 10,000 पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फैमिली पेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक नोट लिख रहा हूं। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर of deceased armed forces employee. आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय, आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना, सीआरपीएफ, आरपीएफ वगैरह। अभी आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिला आफ्टर डेथ ऑफ आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय, तो क्या होगा? यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। पहले आपको देखना है कि आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय को कुछ अवार्ड मिला था क्या? अवार्ड कौन सा? गैलेंट्री अवार्ड। यहां पे मैं लिखता हूं, हु हैज रिसीव्ड गैलेंट्री अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड हम लोग बोलते हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ऐसा कुछ अवार्ड अगर मिला था आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय को और उसके डेथ के बाद फैमिली पेंशन का अमाउंट फैमिली मेंबर को मिला, तो फैमिली मेंबर के लिए पूरा एग्जेम्प्ट होता है। वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मत लिखना, टोटल अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1080। एंड द अदर पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, समझो अगर वो आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय शहीद हो गया, मार्टर्ड हो गया, हु डाइड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ हिज सर्विस, है ना, वॉर हो गई और वॉर में शहीद हो गया, तो फिर ऐसे केस में भी फैमिली पेंशन आफ्टर हिज डेथ, द अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर इज फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1090। अभी आप बोलोगे सर नेचुरल डेथ हुआ, तो नेचुरल डेथ होगा तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन वन थर्ड और 15,000 विच एवर इज लेस आएगा, ठीक है। ये दो स्पेशल केसेस में फॉर आर्म फोर्सेस एम्प्लॉय अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। One is exempt under section 1018 on account of receipt of gallantry award and the other one is due to his death during operation of his service. It is exempt under section 1019, completely fully exempt, एक रुपए पे भी टैक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर का पूरा इनकम मैंने डिस्कस किया, डीसी कुमारी जीएफ तक,
अभी इसके आगे कुछ एक्सपेंसेस के बारे में आपको पॉइंट याद रखने हैं। अदर सोर्स, इस टॉपिक में अगर एक्सपेंस आया तो क्या करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर एक्सपेंस दिया है तो क्या करने का? तो देखो, हम लोग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं इनकम से, लेकिन मैंने आपको बताया था इन माय लास्ट लेक्चर कि अगर एक्सपेंस लेस करना है तो देखना पड़ेगा इनकम का कैरेक्टर कैसा है। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो एक्सपेंस को आप इग्नोर करोगे, अगर इनकम टैक्सेबल है तो एक्सपेंस को लेस करोगे, अगर इनकम फुल्ली टैक्सेबल है, जैसे विनिंग इनकम मैंने बताया था, लॉटरी प्राइस वगैरह, वहां पे एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस को इग्नोर करने का। मतलब एक्सपेंस लेस करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है इनकम के कैरेक्टर के ऊपर। सेक्शन 57 बोलता है एक्सपेंसेस का डिडक्शन हम लोग देंगे। डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 57 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंस लेस करने से पहले हमें देखना चाहिए इनकम कौन सा है। समझो अगर इनकम एग्जेम्प्ट है और उस पर आपने एक्सपेंस किया तो इग्नोर कर देना। इनकम समझो अगर फुल्ली टैक्सेबल है, जैसे विनिंग इनकम है, और उसके ऊपर आपने एक्सपेंस किया तो एक्सपेंस को इग्नोर कर देना। और एक और पॉइंट, समझो अगर आपने एक्सपेंस फैमिली पेंशन पे इनकर किया, फैमिली पेंशन पे, तो भी एक्सपेंस को इग्नोर कर देना, क्योंकि फैमिली पेंशन पे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर इनकम। अभी अदर इनकम मतलब कौन सा इनकम बच गए? ये एग्जेम्प्ट इनकम है, ये फुल्ली टैक्सेबल है, तो अदर इनकम कौन सा बच गया? अदर इनकम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पे इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, विनिंग इनकम और फैमिली पेंशन हमें एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। वी विल नॉट राइट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एज डिडक्शन इन दीज केसेस। इग्नोर एक्सपेंसेस। ठीक है, फैमिली पेंशन में हम लोग एक्सपेंस को नहीं लिखते, लेकिन यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड और मैक्सिमम 15,000 विच एवर इज लेस। इन केस ऑफ अदर इनकम, अगर आपके पास अदर इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, जैसे रेंटल इनकम हो गया, है ना, रेंटल इनकम बताया मैंने, रॉयल्टी इनकम बताया, रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर वगैरह, तो अदर इनकम के केस में हमें डिडक्शन क्लेम करना चाहिए। डिडक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप उस एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 57। आप एक्सपेंस को लिख सकते हो अंडर सेक्शन 57। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।